Hello, friends. Warm welcome to all of you. Welcome, my all friendas and all friendies. Hey, this is your English lecture. Unit first, lesson number 1.2. And here is none other than your favorite teacher. Guess who? Yes, friends, you are right. This is your Deepak sir. Hello, beta. How are you? Friends, the title of the story is The Thief's Story. It is a story of a young boy. देखते हैं The Thief's Story. Friends, the title of the story, The Thief's Story. The story is written by none other than the very famous, the great Indian writer, Mr. Ruskin Bond. मिले हो क्या कभी रस्किन बॉन्ड को? Have you seen his photo? No? Let's see who is Mr. Ruskin Bond. Sir, very warm welcome to you also. देखते हैं बेटा रस्किन बॉन्ड के बारे में. Friends, our great author was born on May 19, 1934 at Kasuli. He is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Lendore in Mussoorie. Mussoorie, yes, you are right, it is in India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India, and that's why our great author got the Sahitya Academy Award in the year 1992 for his best writing, Our Trees Still Grow in Dehra. Friends, उसको और भी कुछ अवार्ड से नवाजा गया है. He was also awarded the Padma Shri Award in 1999 and Padma Bhushan Award in the year 2014. The heartiest congratulations to Mr. Ruskin Bond from me and my dear students. Let's see the introduction. The introduction is about the thief. This thief is 15 years old. This is a story of a young boy and he is a thief. His name was Hari Singh, and here Master Hari Singh himself tells us the story. That's why I can say that the narrator of the story is Hari Singh himself only. कहाँ हो हरि सिंह? Where are you? हरि सिंह आ जाओ यार. Don't behave like एकता कपूर. टैं. Where are you, sir? Oh, आया. See Hari Singh. Friends, let's see the another character of the story, and the another character is Anil. Anil was about 25. He was tall and gentleman. He was lean fellow. He was easygoing. एक सिंपल सा लुक वाला बंदा, एक अच्छे स्वभाव वाला बंदा, easy going and simple and kind hearted person. देखना चाहोगे अनिल कैसा दिखता है? Yes, Anil, where are you? अनिल ये आया. शायद चलने में उसको टाइम लग रहा है. वाव, ये आया नहीं? I think someone is knocking the door of our class. Yes, here he is. See, this is a tall and lean fellow, simple looking,
kind-hearted, and his age was 25. अभी ये दोनों का मुलाकात कहाँ पर हुआ? हरि सिंह एंड अनिल. When Hari Singh met Anil, at that time Anil was watching a wrestling match. ये wrestling match देखता था. कौन? अनिल. और जैसे ही उसने देखा, Hari Singh thought that the simple guy is, you can say, enough for his best purpose. उसका पर्पस यही था कि इसको कैसे भी करके फंसाया जाए. बेटा, किसी को भी साथ में आपको बातचीत करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एडमायर हिम और हर, और यू कैन से आपको उसके लिए कुछ कुछ अच्छा बोलना पड़ता है. हरि सिंह भी ये जानता है कि अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंडशिप. सो बेटा, हरि सिंह एक ऐसा बंदा था who was a perfect thief and he had a fairly successful end. He tried to flatter Anil by saying, "Sir, you look a bit of a wrestler yourself, sir." बेटा, ऐसे करके उसको पटा तो लिया उसने, लेकिन हरि सिंह का नाम पूछा जाता है. उसका नाम पूछा है अनिल ने, और तब ये बोलता है, Hari Singh told him that his name was Hari Singh. Friends, this cheater took a new name every month, which saved him from the policeman as well as from his earlier master. ये कन्वर्सेशन होता है, रेसलर के बारे में बातचीत होती है, एंड आफ्टर दिस लिटिल कन्वर्सेशन ये यहाँ से आगे जाता है. कौन? ये हमारा अनिल. अनिल वॉक्ड अवे. Hari followed him and told Anil that he wants to work for him. Anil denied by saying that he can't pay. उसको बोलता है कि भाई मैं तुझे पेमेंट नहीं दे पाऊंगा. And at that time Hari Singh thought that over for a minute, and he thought that perhaps he had misjudged this man. ये मिसजज तो नहीं किया इसने, कुछ पहचानने में गलती तो नहीं किया है. Because first of all that person was enough for his purpose. और अभी ये पे करने का मना कर रहा है. बट एनी हाउ ही वॉन्ट टू चीट हिम. दैट्स वाई ही पुट अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अनिल. सर, कैन यू फीड मी? एंड ऑन द यू कैन से रिप्लाई, हरि सिंह को वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है अनिल, कैन यू कुक फॉर मी? यस, आई कैन कुक. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, बट फ्रेंड आई कांट पे यू. ऐसे करके दोनों का कन्वर्सेशन चलता है. बेटा, ये चल तो निकल पड़ा ये हरि सिंह अनिल के साथ में. अनिल फाइनली अग्रीड करता है उसको. अनिल एग्रीड टू टेक हिम अलोंग. ही टूक हिम टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड स्लीप ऑन द बालकनी. बट अवर हरि सिंह वॉज नॉट अ गुड कुक. है ना, अच्छा कुक नहीं था वो. द मील ही हैड कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैड बीन अ टेरिबल टेस्ट, क्योंकि अनिल हैड गिवन ऑल द फूड टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड हिम टू बी ऑफ. भाग यहां से, खाना बनाना नहीं आता है. देखो कैसे खाना बनाया था इसमें. हरी प्लीज्ड हिम with the most appealing smile. है ना, उसको कैसे भी करके उसको अप्रोच कर लेता है. प्लीज सर, है ना. एंड एट लास्ट उसको परमिशन दे देता है कि ठीक है भाई, तू रह सकता है. पहली बार हंस के उसने फ्रेंडशिप किया था, सेकेंड टाइम उसको फायर किया जब, तब वापस वो हंस देता है उसके सामने. हरि सिंह को अनिल के साथ में काम करने का मजा आ रहा है. अनिल told him that he will teach him cooking as well as he also teach him how to write the sentences and how to add the numbers. Hari Singh was grateful and was much happy to work for Anil.
बेटा देखो ना, एक बंदा खाना भी सिखा रहा है उसको पढ़ना लिखना भी सिखा रहा है। और बेटा एजुकेशन ने तो एक बात प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव कर दिया है एजुकेशन ने? लिटरेसी हैज प्रूव्ड दैट द स्काई हैज द लिमिट। यू कैन डू व्हाटएवर विद द हेल्प ऑफ योर एजुकेशन। You can earn a good bread with the help of your education. अनिल ये उसको सिखाना चाहता था। ये अनिल कब से आ रहा है ना? हरि सिंह के बारे में तो we come to know that he was a thief. वो तो चोर था। But what was अनिल? अनिल क्या था? By profession अनिल was a writer. अनिल एक राइटर था। And he was writing for a magazines, है ना? He was writing for a magazine. एक मैगजीन के लिए लिखता था। बेटा लेखक, you can say writer, author, कहाँ अच्छी पेमेंट मिलती है? So Anil made earnings by irregular works. You can say by fits and starts. That means बेटा, you can say in short irregular interval में बहुत कम पेमेंट, लेकिन वो भी बेटा पंक्चुअल पेमेंट नहीं रहेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। सो मिस्टीरियस पोजीशन था अनिल का। सो फॉर सर्वाइविंग ही वुड समटाइम्स बोरो मनी एंड समटाइम्स ही लेंड इट टू द अदर्स। पैसा लेना देना चलता रहता था। एक बात उसे बहुत टेंशन में देती थी, एंड दैट वाज he was always worrying about his next payment. And बेटा कभी पैसा आया, at that time what he will do? He would go out to celebrate as soon as his payment used to be arrived. It seemed ये मैगजीन के लिए लिखता था, इन शॉर्ट में बोलूँ तो। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, one evening he came home with a small bundle of notes saying that he had just sold a book to a publisher. उसने अभी अभी पब्लिशर को एक बुक बेचा है, ऐसा उसने बोला हरि सिंह को। बेटा ऐसा करके उसने 600 रुपीज दिखाया। दैट नाइट ही टक्ड द मनी 600 रुपीज अंडर द मैट्रेस। वो गद्दे के नीचे वो पैसा छुपा देता है। कौन? अनिल। छुपाता नहीं है, उसको प्रेस करके रख देता है, दबा कर रखता है। अभी ये जो चोर था हरि सिंह, ही वॉज थिंकिंग, अंदर का शैतान जाग उठता है चोर का। ही वॉज थिंकिंग दैट आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, है ना, एक महीना होने को आया। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन हिज लाइन ऑफ वर्क। कब से काम कर रहा है ना इसके लिए, लेकिन आज तक एक एक रुपया चोरी से ज्यादा कुछ कमाया नहीं उसने। I had every opportunity for doing so. Why? Because Anil had given him a key to the door and he could come and go as he pleased. He was the most trusting person. एक ऐसा मालिक उसको मिला था in his entire life कि आज तक उसको ऐसा बंदा नहीं मिला था जो उसके ऊपर विश्वास रखेगा। So Anil had a full trust on Hari Singh, and this trust was the preventing, you can say, factor which prevent him robbing Anil. अनिल को लूटने के लिए यही उसको मना कर रहा था, उसका यही जो उसका विश्वास था। एंड बेटा ये लूटना नहीं चाहता है, लेकिन उसको चोरी करने के उसके पास बहुत सारे रीज़न थे। रीज़न नंबर वन, द वेरी सिंपल रीज़न, एक महीना होने को आया और उसको अभी तक एक भी सिंगल नया पैसा एज अ सैलरी, एज अ पेमेंट उसने दिया है अनिल ने उसको। तो ये पहली बात थी। चोरी किया तो क्या हुआ, मेहनत करके ही तो लिया है। द सेकेंड वन बेटा एक महीने से हाथ साफ नहीं किया कहीं पे, तो प्रैक्टिस छूट जाएगा उसका, परफेक्टनेस चला जाएगा उसका। दैट वॉज द सेकेंड पार्ट। तीसरा ये सोचता है मैंने नहीं लिया तो बेटा ही विल सेलिब्रेट दिस अमाउंट विथ हिज फ्रेंड्स, ही विल वेस्ट ऑल दिस मनी विथ हिज फ्रेंड्स। ये अपने दोस्तों पे वेस्ट कर देगा ये पैसा।
ऐसे सोच के बेटा ये मन ही मन में सोचने लगा है, यस अपना टाइम आ गया, यस इट्स टाइम, अभी कुछ रियल काम करने का टाइम आ गया है। एंड बेटा ये पैसा चुरा लेता है। पैसा चुराने के लिए वो धीरे धीरे जाता है उसके पास, बराबर ना। लेकिन और एक बार सोचता है, यार ऐसे बंदे को लूट के क्या करूं, बिकॉज अनिल वॉज अ केयरलेस पर्सन। बेटा देखो, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब सच यू कैन से सच अ केयरलेस पर्सन। ऐसा केयरलेस पर्सन को लूटना बहुत डिफिकल्ट है। एंड इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक ग्रीडी पर्सन को लूटना बहुत सिंपल होता है, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रॉब अ केयरलेस पर्सन लाइक अनिल। क्यों इतना डिफिकल्ट है? बिकॉज बेटा उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही डिड नॉट इवन नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड बाय समवन। उसको कभी ऐसा पता ही नहीं चलता था कि कोई ने किसी ने उसको लूट लिया है, क्योंकि एवरी डे जब शॉपिंग के लिए जाता था वो पर डे 1 रुपये उसमें से निकाल लेता था। तो क्या मजा आएगा चोरी का जब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, है ना। देखते हैं, इसने पैसा लिया गद्दे के नीचे से, जो दबा के रखा था, छुपा के रखा था, वहां से पैसा लिया और ये बंदा निकल पड़ा। तो बेटा उस रात को वो जाने वाला था बाय लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन। उसने टाइम शेड्यूल भी फाइनलाइज कर लिया था। ही डिसाइड टू लीव द सिटी बाय लखनऊ एक्सप्रेस दैट डिपार्टेड एट 10:30. When he reached the station, the train had slowly started moving from the platform. ये देखो बेटा, वो जब आया तो ट्रेन धीरे धीरे, आप देख सकते हो कि वहां से वो चलने लगी थी, वो मूव होने लगी थी ट्रेन। बट द स्पीड ऑफ द ट्रेन was so slow that he can easily jump into the running train. लेकिन बेटा he could have easily caught the train, but he hesitated and he himself did not know the reason for it. उसको खुद को ही रीजन मालूम नहीं क्यों नहीं जा रही है। बिफोर ही had reached the station, he counted the money. हाँ, पैसे पहले ही स्टेशन में एंटर करने से पहले। एंड मजे की बात बेटा, वो टिकट भी नहीं निकालता है। क्यों? क्योंकि कभी भी वो चोर था ना, टिकट कैसे निकालेगा। सो वो पैसा काउंट करता है। इट वॉज 600 रुपीज इन 50 रुपीज नोट्स। ही कुड लिव अ लैविश लाइफ, है ना, एक लग्जूरियस लाइफ। और लग्जूरियस लाइफ भी कैसा बेटा? लाइक यू कैन से लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर 2 to 3 weeks विथ सो मच मनी। 600 रुपीज से अरब के जैसा लाइफ जी पाएगा, वो मजे करेगा। बट आफ्टर द ट्रेन had left ना, Hari was all alone at the railway station. He was left with no place to sleep at that night. इसके लिए बेटा वो एक प्लेटफॉर्म के बेंच के ऊपर बैठ जाता है, सर पे हाथ रख के सोच रहा है कि यार मैं कहाँ जाऊं, ट्रेन छूट गया था। 10:30 का लखनऊ एक्सप्रेस had gone. The only person he knew was Anil and he had looted him as he is getting this idea. उसको ये आइडिया दिमाग में था ही कि यार मैंने तो जिसके पास जाना था उसको मैंने लूट लिया था। He sat on a bench in a park and as it started to rain, बारिश हो रही है रात को, in the month of November, he sat down under the clock tower. क्लॉक टावर के नीचे बैठता है वो। और बेटा रात के मिडनाइट होने को है, टंग 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 करके घड़ी में 12 बज रहे हैं। Then he realized that the notes had got weight and he realized that learning how to read and how to write would help him to get much more respectable and honest job which would pay him much more than this few 600 rupees. ये 600 रुपीज में क्या लाइफ बनेगा? इससे अच्छा कुछ पढ़ लेगा तो बेटा एंटायर लाइफ उसकी मस्त से डेकोरेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। Then he decided to go back to Anil's house.
क्या करूं, जाना चाहिए. एंड ही हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. बहुत नर्वस है अपना बंदा. फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न टू इट, यू कैन से अनडिटैच्ड. पैसे चुराना इट्स वेरी सिंपल टास्क, लेकिन बिना बताए अनडिस्कवर्ड होते होते पैसा रखना रिटर्न उसी प्लेस पे, दैट इज वेरी डेंजरस. हरी सिंह hurried back to Anil's room. He opened the door quietly and then stood in the doorway in clouded moonlight because there was a drizzle of rain and Anil was still asleep. He crept to the head of the bed and his hand came up with that wet notes. He felt his breath on his hand and he remained still for a minute. एक आध मिनट के लिए वहाँ पे रुकता है. And then his hand found the edge of the mattress and he slept under it with the notes. पैसे अंदर वापस पुश कर देता है. Next morning he woke late. Why? And after, you can say, जगने के बाद में he find that Anil had already made his breakfast as well as tea. He stretched out his hand towards Hari Singh. ऐसे हाथ लंबा करके उसको कुछ दे रहा है. क्या दे रहा था वो? It was a 50 rupee note. इसका तो दिल बैठ गया. किसका? हरी सिंह का. His heart sank. बाप रे, इसको पता चल गया कि नोट गिल्ले और घर में दो ही बंदे. अनिल तो घर के बाहर गया नहीं है, तो शायद हरी सिंह बाहर गया है. It was proved. He thought he had been discovered by his master. लेकिन देखो बेटा, see the generosity and you can say the greatness of Anil. Hey Harry, I made some money yesterday. Now you will be paid regularly, my dear friend. From today onward, in every month I will pay you your salary. बेटा, सामने वाले को पता है कि नोट गिल्ले हो चुके हैं, किसी ने चोरी किया है, कोई रात को बाहर गया है, कोई वापस रिटर्न भी आया है. एवरीथिंग वॉज डिस्कवर्ड. फिर भी ये कुछ ऐसा बिहेवियर. एंड हरी सिंह स्पिरिट रोज, हाँ, एकदम वो मस्टर कर देता है, करेज मस्टर करता है. ही गैदर्ड ऑल हिज करेज एंड ही टुक दैट नोट, 50 rupees note. He saw that it was still wet from the night's rain. और ये अनिल क्या कहता है एट द एंड मालूम है? हरी, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंसेस. हाँ, बी रेडी. देख, चाय नाश्ता हो गया है, आ जा बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, बिकॉज वी विल स्टार्ट राइटिंग सम सेंटेंसेस. हरी सिंह न्यू that Anil had discovered him. But neither his lips nor his eyes showed anything. बेटा, ना तो उसके लिप्स कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, ना ही उसका वॉइस कोई कंप्लेंट कर रहा है, ना ही उसके आईज में कुछ एंगर वगैरह दिख रहा है या कंप्लेनिंग फिगर गेस्चर्स दिख रहा है. He smiled at Anil in the most, you can say, appealing way. ये तीसरी बार हंसा ये लेसन में. पहली बार रेसलिंग मैच देख रहा था तब अट्रैक्टिव स्माइल किया था. सेकेंड टाइम खाना बुरा बना तब उसने अट्रैक्टिव स्माइल किया. और ये तीसरी बार उसने जो स्माइल किया है बेटा, दिस स्माइल है ना, केम बाय इटसेल्फ. हाँ, केम बाय इटसेल्फ. इट्स विदाउट एनी एफर्ट. दो बार तो बेटा वो चोरी करने के इरादे से वो हंसता है उसके सामने, थोड़ा अपीलिंग स्माइल करता है, अट्रैक्टिव स्माइल करता है. लेकिन लास्ट स्माइल था ना, दैट वाज द रियल स्माइल. अभी वो चेंज हो गया है. उसका वापस घर पे रिटर्न आना है ना, पैसे वापस लौटा देना, यही उसकी है ना जनरोसिटी थी. और हरी सिंह बदल चुका था. जब ये राइटर स्टोरी लिख रहे हैं ना बेटा, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द लेसन इज आई वॉज स्टिल अ थीफ. एंड बेटा लास्ट में यही बात मैं टर्न करूँगा, दैट नाउ ही वॉज नॉट अ थीफ.
है ना, 15 साल में अभी वो बदलने जा रहा था, बदल चुका था, है ना। तो बेटा हियर इज़ अ स्टोरी, एक रॉबर, एक थीफ कैसे एक सेंट बनता है ना, एक सेक कैसे बन जाता है, साधु कैसे बनता है, एक अच्छा इंसान कैसे बनता है। बेटा एजुकेशन यही चीज़ है ना, एजुकेशन यही है कि भाई यू कुड अचीव everything in your life. There is no limit if you are having a majestic stick with you, magic stick with you, and that magic stick is your education, your literacy, है ना। तो बेटा get education and set your life. Some hard words are there. देखेंगे बेटा, लीन, थीन, फ्लैटरी, यू कैन से एक्सेसिव एंड इंक्रीज इनसिंसियर प्रेज, मॉडेस्टली, यू कैन से इन एन अनएश्योरिंग मैनर विदाउट वेनिटी और एरोगेंस। एम्प्लॉयर जो काम देता है वो, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज द पर्सन और द पीपल। ग्रंटिंग, दैट इज अ वॉइस, यू कैन से मेक अ लो शॉर्ट गटरल साउंड, appealing, attractive. Misjudge, you can say form a wrong opinion about someone. Balcony, आपको मालूम है, terrible भी मालूम है, petted, touched quickly and gently with the flat of a hand. Pleasant मालूम है. Then you can say supplies मालूम है, जो ग्रोसरी वगैरह जो डेली आपका नीड्स है वो लेने के लिए. Next column, fits and starts, you can say not working on something consistently, or you can say by fits and starts means in short irregular intervals. Borrow, उधार लेना, lend, उधार देना, queer, strange, bundle मालूम है, tuck मालूम है, push something or you can say push something under some you can say garment or bed clothes so as to hide or secure them. लाइन ऑफ वर्क, एक काम होता है, बिजनेस होता है, जॉब होता है, यू कैन से द प्रिंसिपल एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट यू डू टू अर्न मनी. बीम मालूम है, क्रैफ्ट मालूम है, क्रैफ्ट मूव स्लोली. देन बेटा ड्रू, पुल और ड्रैग. साइड मालूम है, साइड दैट मीन्स एमिट अ लॉन्ग डीप ऑडिबल ब्रेथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस है, रिलीफ है, टायर्डनेस है, रिलैक्सेशन है. स्टार्टल्ड मालूम है, सरप्राइजिंगली. शेल्टर, लाइक यू कैन से फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ऐसा ये शेल्टर, अ प्लेस गिविंग टेम्पररी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर और अ डेंजर. देन यू कैन से क्लॉक टावर मालूम है, वो 12 बजे वाला जो दिखाया था वो. देन मिडनाइट, 12 o'clock एट नाइट. डैम्प, यू कैन से साइलेंट, स्लाइटली वेट. सिनेमा मालूम है, हरीड, यू कैन से डन इन अ हरी, रश्ड. Then undetected, that is not detected or you can say discovered. Clouded मालूम है, make or become less clear or transparent. Dashed मालूम है, quickly run towards something. Carriage, वो compartment, ट्रेन का, रेलवे का compartment. Any of the separate section of the train that carry the passengers. Hesitated, pause in the indecision before saying or doing something. indecision में रुक जाना, that means बेटा अभी तक वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, ट्रेन में जाऊँ या नहीं जाऊँ. deserted, lonely place, you can say. curious, eager to know or learn something or to learn something. robbed मालूम है, take property unlawfully from a person or a place by force or you can say by threat of force. बाजार मालूम है, मैदान मालूम है, ड्रिजल मालूम है, लाइट रेन, फॉलिंग इन वेरी फाइन ड्रॉप्स, है ना, वेरी शॉर्ट ड्रॉप्स में. सो बेटा इन दिस वे I had tried my level best to teach you the first lesson, first unit 1.2, the thief story. Thank you friends. Bye.